Good morning, dear students. So in last lecture, we have studied about basic introduction of ecosystem, and we have also observed about some ecosystem structures, as well as we have also completed the lecture on this particular point, that is some basic components. These are the basic components which are actually a part of any ideal ecosystem that we have completed. In that we have discussed about productivity, decomposition, energy flow, and nutrient cycling. Along with that, we have also discussed about some introductory part of all these four basic components of ecosystem. Today we are going to discuss about these components in detail. So we are going to start with the first component of the ecosystem, that is productivity. So dear student, we know the meaning of productivity in general. Okay, if we want to define productivity, then obviously there will be uh, some concept of rate in our mind. Productivity, तो कितने क्वेश्चंस हमारे दिमाग में हो सकते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी? नंबर 1, स्पीड ऑफ प्रोडक्शन. Number 2, that means you can say quantity of the production with speed. Quality of the production, okay, that is productivity. And how it is going to be useful, particularly with respect to the product itself and to the consumers of those products. So in the ecosystem also the same concept is working. As all the ecosystems, when they are functioning, obviously there are number of products of the ecosystem which are directly useful for variety of the organisms, which are components, which are the part integrals of the entire ecosystem. तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की. एक इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, और ये जो प्रोडक्टिविटी है, इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी, वो किस हिसाब से पूरे इकोसिस्टम के लिए एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन के रहता है. सो we know that whenever we are talking about productivity, the first producers, you can say, of the entire ecosystem are obviously plants. And how plants are performing this? So solar energy is the basic requirement for an ecosystem to function, and as well as for its sustainability. Okay, solar energy, and we already studied about this concept in 11th standard. Amount of biomass, which is called organic matter, which is produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis, is called primary production. देखिए मैंने अभी आपको बताया कि if we are talking about productivity, obviously there will be a concept of speed, concept of rate, concept of quantity and quality in our mind. So यहाँ पे भी वही है, सेम है. amount of biomass, that is called organic matter. क्योंकि biomass का मतलब क्या है? Biomass is actually what? Entire body of the organism. तो जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, that is organic. So amount of organic matter which is produced per unit area in the given unit area, in the given zone only, over a given time period by plants, because plants are only having this capacity to utilize the solar energy, and by utilizing that radiant energy coming from the sun, and they can convert this solar energy into the chemical energy. Okay, so only plants are having this capacity, and by performing photosynthesis they are obviously doing this thing. So overall जितना भी organic matter produce हो रहा है by utilizing the solar energy, that particular
organic matter or biomass is called primary production. Okay, it is called primary production. It is expressed in terms of weight. Okay, क्योंकि मैंने quantity आपको बताया. So it is expressed in terms of weight, that is gram is to -2, or energy, that is kilocalorie per meter square. Okay, तो weight के यूनिट में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं और एनर्जी के फॉर्म में भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके, सो एनर्जी और वेट, बिकॉज अल्टीमेटली ऑर्गेनिक मैटर जो है, मैंने अभी आपको बताया कि एंटायर बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनिक मैटर, राइट. तो ऑर्गेनिक मैटर दैट इज वेट, देन एनर्जी ऑब्वियसली, राइट. सो इसी ऑर्गेनिक मैटर को यूटिलाइज करके कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना जितने भी प्रोसेसेस है फॉर इट्स लिविंगनेस वो कंप्लीट करता है. सो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी यू कैन also explain it. The rate of biomass production is called productivity rate. Okay, तो ये कौन सी स्पीड से चल रहा है बायोमास प्रोडक्शन का काम, that is called productivity. Okay, तो ये कुछ डेफिनेशन प्राइमरी प्रोडक्शन की डेफिनेशन है as well as productivity की definition that you have to obviously remember. It is expressed in gram raised to -2 per year or kilocalorie per meter square per year. Okay, so ये उसके जो है units हैं. Okay, how you can summarize biomass production, that is productivity. ओके, तो प्रोडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए ये यूनिट्स आप यूज कर सकते हैं. आप देखो ये प्रोडक्शन का यूनिट है और ये प्रोडक्टिविटी का, दोनों में एक फैक्टर ऐड हुआ है, दैट इज व्हाट, पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम दैट इज एडेड, राइट. क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की जब हम बात कर रहे हैं, दैट इज ऑब्वियसली यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम स्केल. It is divided into gross primary productivity, that is called GPP, and net primary productivity, that is called NPP. Gross primary productivity and net primary productivity. अब देखो किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म में, समझ लीजिए कि कोई एक फैक्ट्री है, वहां पे अगर किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियस है कि 100% प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड, उसमें से कुछ वेस्टेज भी निकलने वाला है. सो यूटिलाइजेबल प्लस वेस्टेज, दैट इज कॉल्ड ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन ओवरऑल, और उसमें से जो यूटिलाइजेबल है दैट इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन. ओके, दैट इज एनपीपी. तो ये टर्म्स नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं. ओके, इवन इन द बोर्ड एग्जाम दे आर आस्किंग यू इन 2 marks क्वेश्चन. ओके, so gross primary productivity, उसका मतलब क्या है, that is abbreviated in the form of GPP. So it is the rate of production of organic matter, rate of production of organic matter during photosynthesis. Overall organic matter जितना भी प्रोडक्ट हो रहा है, that is called GPP. A considerable amount of GPP is used by plants for their respiration. ओके, तो ओवरऑल सनलाइट को यूज करते हुए फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट ने अपना जितना भी ओवरऑल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया इन द फॉर्म ऑफ द बायोमास, यू कैन से दैट इज कॉल्ड जीपीपी. बट उसमें से भी प्लांट अपने सर्वाइवल के लिए भी कुछ यूज कर लेगा बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. सो good amount of GPP is obviously going to be utilized by the plants for their own survival, for their own respiration. तो जीपीपी में से प्लांट ने कुछ यूज कर लिया अपने सर्वाइवल के लिए, अब जो बाकी बचा दैट इज कॉल्ड एनपीपी. सो एनपीपी इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. इट इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन ऑफ द हेट्रोट्रॉप्स, मतलब के ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच आर एक्चुअली डिपेंडेंट on other organisms directly, those are heterotrophs. अब heterotrophs में herbivores भी आप consider कर सकते हैं because herbivores are dependent on the plants. You can consider decomposers also, okay, which are also dependent on the dead bodies of the plants.
सो NPP is gross primary productivity minus respiration losses, that is R. तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो जो है आपका दैट इज NPP, अब वो कहाँ से आया? तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से प्लांट ने अपने रेस्पिरेशन के लिए जो यूज कर लिया है उसके बाद जो बाकी बचा दैट इज NPP, एंड ऑब्वियसली दैट बायोमास इज दैट बायोमास is utilizable for other organisms. Those are heterotrophs which are dependent on this plants. Okay, तो उसमें herbivores आ जाएंगे और decomposers. अब herbivores और decomposers अलग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि herbivores are directly utilizing the live plants majorly, and decomposers are obviously dependent on the dead bodies of the plants. Okay, तो इसीलिए इक्वेशन ये बनेगा NPP is equal to GPP minus R. अब होता ये है कि नीट एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ऐसा सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, थोड़ा ट्विस्ट करके पूछेंगे। आपको ये देंगे किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर इतना GPP है और उसमें से प्लांट इतना रेस्पिरेशन के लिए यूज कर रहे हैं, व्हाट विल बी द NPP फॉर द गिवन जोन, ऐसा करके आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे पूछे भी गए हैं। फाइन। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तो आप देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, हम जो बात कर रहे हैं दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दो इट इज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दो अलग अलग तरह के प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की हम बात कर रहे थे। नाउ वी आर डायरेक्टली कमिंग टू द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। तो प्लांट ने तो अपना प्रोडक्शन का काम कर लिया, ओके, प्लांट हैज यूटिलाइज द थिंग्स, और यूटिलाइज क्या किया प्लांट ने? तो सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड ऑल दिस, ओके, CO2 फ्रॉम द एयर, और उसने अपना प्राइमरी प्रोडक्शन का काम खत्म कर दिया। प्लांट्स को यूज किया है हर्बीवर्स ने, ऑब्वियसली दिस हर्बीवर्स आर गोइंग टू बी किल्ड बाय द कार्निवर्स, स्मॉल कार्निवर्स आर गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड बाय द लार्ज कार्निवर्स, मतलब कार्निवर 1, कार्निवर 2 एंड सो ऑन। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है दैट इज ऑब्वियसली primary productivity is obviously a part of plant's duty. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है वो प्लांट के बाद जितने भी ऑर्गेनिजम्स इन द फूड चेन है वो कुछ भी बायोमास बना रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं बाय कंज्यूमिंग द ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम देयर प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मतलब अगर कोई रैबिट ग्रास को यूटिलाइज कर रहा है फॉर इट्स सर्वाइवल, and this rabbit is growing by utilizing the grass, तो रैबिट ने जो बायोमास डेवलप किया है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ओके, तो इस तरह से इसको हम कंसीडर करेंगे। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरीज इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? सो इट डिपेंड्स ऑन प्लांट स्पीसीज इनहैबिटेटिंग एन एरिया। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो ड्यूटी है वो किसकी? प्लांट्स की ड्यूटी है। तो ऑब्वियसली प्लांट वेजिटेशन क्या है उस एरिया में उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होने वाली है। सो प्लांट स्पीसीज अगर डेंसली कैनोपाइड ट्रीज है तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी वहां पे। ओके, अगर कैक्टस है, ऐसे कुछ है डेजर्ट एरिया के प्लांट्स है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम होगी। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरीज इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। अब इकोसिस्टम के नाम तो हमें पता ही है, लास्ट चैप्टर में भी कुछ हमने पढ़े हैं और इसमें भी हम पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम्स के टाइप्स। सो इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीसीज इनहैबिटिंग एन एरिया। नंबर 2, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, मतलब जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हम बोलते हैं इकोसिस्टम के, दैट इज सॉइल कंपोजिशन, वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ सॉइल एज वेल, ओके, विंड यानी कि आप एयर बोल सकते हैं, और सोलर रेडिएशन। ओके, तो ये सारे जो हैं दोज आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स व्हिच आर डायरेक्टली अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी। हमने लास्ट ईयर भी स्टडी किया है कि
फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या थे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस? दे वर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का काम जो है वो कौन कर रहे हैं? प्लांट्स कर रहे हैं। और कौन सी प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं? तो ऑब्वियसली दे आर परफॉर्मिंग थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो जितने भी फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं उतने ही फैक्टर्स, वही सारे फैक्टर्स प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को भी अफेक्ट करते हैं। देन अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। अब आप देखो ये सब क्या चल रहा है, तो आपके चैप्टर नंबर 13 चल रहा है, चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, 11th का, राइट? अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मैक्रो एलिमेंट्स, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट्स, उसका जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट्स, मतलब प्लांट की खुद की कैनोपी कितनी है, लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है, पिगमेंटेशन कितना है, क्लोरोफिल कितना है, एवरीथिंग इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लांट्स। तो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट्स, ओके। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है किसी एक इकोसिस्टम की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। ऑब्वियस है कि अगर किसी इकोसिस्टम की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर हायर है तो उसकी इफेक्ट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी रहने वाली है, मतलब कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी हाई रहने वाली है। बिकॉज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इफ इट इज हाई, it can justify variety and the number of the organisms in that particular ecosystem. जितना प्राइमरी प्रोडक्शन ज्यादा होगा वहां पे स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज डाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी। आप देखो, if you are going through Amazon rainforest or western ghats of India or northeastern states of the India, तो वहां पे हाईली कैनोपाइड ट्रीज हैं, ओके, डेंस कैनोपी है, वैरायटी है। तो उसी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स उनके ऊपर डिपेंड रह सकते हैं क्योंकि वहां पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का रेट हायर है। नाउ कम टू द डेजर्ट एरिया, राजस्थान एंड कच्छ एंड ऑल दिस, व्हाट हैपेंस? प्लांट की स्पीसीज कम हो रही है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स वहां पे फेवरेबल नहीं है, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी भी कम है, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी भी कम हो रही है, तो फिर वहां पे हमें ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी भी कम मिल रही है। क्यों? कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम है तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी कम होने वाली है, तो नंबर ऑफ स्पीसीज विच कैन बी justified, which can be occupied in that particular region will be less. So ये सब कुछ एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। Now if we want to discuss about annual net primary productivity, ओके, तो किसी एक एरिया में पर ईयर कितनी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो रही है उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑफ होल बायोस्फीयर, एंटायर ग्लोब की अगर हम बात करें, इज अबाउट 170 बिलियन टन्स, दैट इज ड्राई वेट, ओके, मतलब वाटर उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। 170 बिलियन टन्स ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इज प्रोड्यूस्ड on this entire planet every year. Of this, despite occupying 70% of the surface, the productivity of the oceans is only 55 billion tons. हमें पता है कि 70% region is covered by the oceans on this globe. तो 170 बिलियन टन्स में से ओशन का कंट्रीब्यूशन कितना है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए? ओनली 55 बिलियन टन्स, ओके। सो यू कैन से ऑलमोस्ट 150 बिलियन टन्स जो प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज द ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इट इज बाय द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। तो आप देखो यहाँ पे वर्ड यूज नहीं किया इकोसिस्टम, लेकिन मराइन इकोसिस्टम जो है वो मराइन इकोसिस्टम का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है ओनली 55 बिलियन टन्स। बाकी अगर आप देखने जाओ, 55 मतलब आप इसको ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 1/3 रफली, ओके, इट इज रफली 1/3, क्योंकि 55 इंटू 3 करेंगे आप तो 165 आएगा ये, राइट? सो आप देखो 3/4 एरिया कवर करके रखा हुआ है ओशंस ने, और 1/3 ही प्रोडक्शन इनका कंट्रीब्यूशन है मराइन इकोसिस्टम का, और बाकी का जो है दैट इज 2/3 प्रोडक्शन इज जस्ट बाय 1/4 ऑफ द ग्लोब, ओके। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरह से। So dear students, this is all about productivity of the ecosystem, okay? Fine.
Fine. So the second component of the ecosystem, that is decomposition. So dear students, we are going to discuss about decomposition right now. So first of all, what do you mean by decomposition? Decompose. So it is the breakdown of the complex organic matter by decomposers into inorganic substances like CO2, that is carbon dioxide, H2O, that is water, and nutrients. Okay. So generally, whenever we are talking about photosynthesis and all these things, okay, so they are biosynthetic pathways. Okay, वो formation का काम करते हैं, लेकिन किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेड बॉडी को, ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोजिशन करने का काम भी कुछ ऑर्गेनिज्म इस इकोसिस्टम में करते हैं. So what they are supposed to do for decomposing the organic matter? So they have to break down the complex molecules, okay, like proteins, lipids, polysaccharides, nucleic acids, all these are going to be decomposed. And after complete breakdown of this all organic matter, obviously they are going to be converted into inorganic substances. क्योंकि ये बने भी तो ये inorganic substances के बीच में एक reaction होने के कारण. तो obvious है कि from where they are coming, they have to get back there. Okay. So they were formed from the inorganic substances. Now after degradation, after complete breakdown by some processes, they are converted into CO2, water, and nutrients. It is largely an oxygen requiring process. Okay, so decomposition is obviously requiring oxygen, means you can say aerobic process should be there. Raw materials for decomposition is called detritus. Now it is very important word, detritus. Okay, so detritus जो है, it is considered as raw material of the decomposition pathways. Okay. Fine. For example, dead plant remains, that is you can say leaves, bark, flowers, etc. Plant के किसी भी part का नाम है आप यहाँ पे लिख सकते हैं. Dead remains of animals, okay, as well as fecal matter. मतलब जो excretory material है किसी भी organism का, animal का, वो भी इसमें ही consider होगा. So all these are considered as detritus. Detritus का मतलब ही ये है any natural waste produced by organisms. Okay, any natural waste material which is produced by organism. Okay, तो ये सभी नेचुरल वेस्ट हैं, क्योंकि डेट्रिटस में आप देखो कि प्लांट के रिमेनिंग पार्ट्स, दैट इज लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, ट्विग्स एंड ऑल दिस थिंग्स, रूट्स, जो लिखना है आप लिख सकते हैं, प्लांट के बॉडी पार्ट होने चाहिए. डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल्स और द organs of the animals, you can say, as well as the excretory material, which is also organic matter that we know. Okay, so fecal matter is also considered as the detritus. Now see, अगर ये सभी डेड बॉडीज, डेड बॉडी पार्ट्स और फीकल मैटर अगर डिकम्पोज नहीं होंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? ऑब्वियसली दे कैन बिकम द सोर्स ऑफ वैरायटी ऑफ द इन्फेक्शंस, नंबर वन. नंबर टू, they are increasing the carbon load on this planet. Number three, all these materials are produced by some reactions between some inorganic components like CO2 and water and all this, right? तो अब उसको वापस तो लेके जाना पड़ेगा नेचर में इन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिग्रेड दिस डेट्रिटस. ओके, तो इस डेट्रिटस को डिग्रेड करना पड़ेगा. दैट मींस यू कैन से दिस डेट्रिटस शुड बी डीकंपोज्ड. आफ्टर decomposition they will come into their original state, say for example CO2, water, H2S, some mineral elements, and all these are there. Okay, you can see some
डीकम्पोजिशन प्रोसेसेस, आप देखो यहाँ पे एनिमल, यहाँ पे फ्रेश डेड बॉडी है, फिर इसका ये डीकम्पोजिशन शुरू हुआ, यू कैन सी द ब्लैकनिंग ऑफ द डेड बॉडी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसका एक फॉसिल जैसा कुछ रह गया है. In the same way, you can see the after complete decomposition, okay, what is there, right? ऐसा ही आप देख सकते हैं plants के बारे में भी, okay, after complete decomposition, what is going to happen? Now there are certain steps of the decomposition, because as it is looking very simple, लेकिन वो इतना simple है नहीं, right? Steps of the decomposition. The very first step of the decomposition is fragmentation. So obviously you are having very large molecules, or you can say like this type of the animals or plant dead bodies or body parts of the plants and all these things, right? So in the very first step you have to chop up that. Okay, not we are supposed to do, but certain organisms are doing this. Okay, so they are going to fragmentize this particular things, organic matter, first of all, in the very first step. Second step is called leaching. Okay, utilizing the things which can be utilized from this particular remaining parts. Number 3, catabolism. We know the meaning of catabolism. Okay, that is again degradation. Now see, fragmentation is at the larger scale. Okay, और जो कैटाबॉलिज्म जो है वो क्या है, तो ऐसे कंपाउंड्स जो हमें दिख नहीं रहे हैं लेकिन वो प्रेजेंट तो हैं, लाइक प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, यू कैन से लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ऑल दीज आर ऑब्वियसली गोइंग टू बी डिग्रेडेड. अब देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी पार्ट है या एंटायर ऑर्गेनिज्म जो है वो बना तो है सभी इन्हीं कंपोनेंट से, तो पहले उसको चॉप अप किया जाए, लीचिंग किया जाए, कैटाबॉलिज्म किया जाए. कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, अब सिंपल कंपाउंड्स जो है ये आप समझ लीजिए कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के जैसे ही काम चल रहा है. ओके, इन माउथ वी आर फ्रेगमेंटाइजिंग द बाइट. ओके, और फिर स्टमक और इंटेस्टाइन में, स्टमक में ज्यादातर इसका कैटाबॉलिज्म मैक्सिमम हो रहा है. देन ह्यूमिफिकेशन. ओके, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू clear this entire organic substance, okay, which is now not usable by some higher organisms, तो फिर उसको ह्यूमिफाई किया जाएगा. ओके, ह्यूमस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, which is amorphous compound. And last one, it is mineralization process. Okay, because ultimately what you are supposed to do, जो कुछ भी आपने नेचर से थ्रू बायो जियोकेमिकल साइकिल्स यूटिलाइज किया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, दो शुड बी रिटर्न बैक टू द नेचर इटसेल्फ. तो ऑब्वियसली भले ही आपने ऑर्गेनिक मैटर बनाया, लेकिन उस ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ आपने बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी यूज किए विच आर एक्चुअली यूटिलाइज्ड फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम द वाटर, बाय प्लांट्स पर्टिकुलरली इन द स्टार्टिंग फेज, ओके, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो अब ये मिनरल्स भी आपको रिटर्न करने पड़ेंगे, राइट? सो मिनरलाइजेशन. ओके, after mineralization, all these elements are again going to be utilized by the plants in the presence of the sunlight. By performing photosynthesis, plants are again forming the organic matter. This organic matter is again going to be utilized by the herbivores. Herbivores are going to be utilized by carnivores, and carnivores too, and so on. अब ये सभी प्लांट से लेके कार्निवर 2 तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ होगी, तो फिर क्या होगा, अगेन ऑल दिस 5 स्टेप्स आर गोइंग टू बी परफॉर्म्ड, दैट इज डीकम्पोजिशन, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. इन नेक्स्ट लेक्चर we will be discussing about all these very important steps of the decomposition. All 5 steps we are going to discuss about. Okay, so till then please go through your textbook. Okay, ये जो chapters हैं आपके textbook का एक एक word, एक एक line आपको पता रहना चाहिए for cracking the NEET exam. अगर इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो textbook से ही आएंगे, that is you can say confirmed.
as well as for theory, they are obviously going to ask some very simple and silly questions from this chapters. तो यहाँ से marks नहीं जाने चाहिए. I'm again and again saying your last unit is really scoreable. If you are focused with this unit, you can gain a lot from this. Okay. So till then, stay safe. Have a nice day. और अगर फिर भी कोई doubt या queries हैं, please contact me anytime. Okay. I'm ready to help you. Goodbye.